which were referred as bacteriophages? The bacteria which infect, the viruses which infect bacteria are called as bacteriophages. So he worked with bacteriophages. I couldn't tell the whole process. So one by one, he made either their first time he made their protein code radioactively labeled, and in the second lot he made their DNA radioactively labeled. And when these two different lots of bacteria, bacteriophages, were made to infect bacteria and then centrifuge, then what was found that wherever the DNA was radioactively labeled, the radioactivity was seen inside bacteria. Whereas where the protein coat of bacteriophages was radioactively labeled, the radioactivity was seen in the supernatant. Okay, not inside the bacterial cells. So this shows, this gave the perfect proof that yes, it is the DNA which is the genetic material, not the proteins. Okay, after this, I had told you that what is the method of replication of, we have studied about the structure of DNA. We studied that the most active DNA is the biological DNA or the bDNA. Okay, and this bDNA or all DNAs are basically made up of nucleotides, and these nucleotides are made up of three subparts, that is the sugar, the phosphate, and the nitrogenous bases makes up the nucleotides. Nucleotides combine with one another by phosphodiester bond, and they combine to form a nucleic acid. If the chain is single stranded and the sugar is ribose sugar, then it will be a RNA. If the sugar is deoxyribose sugar, that is at the 2' end, there is only H, no OH, then it is a deoxyribose sugar. And when this deoxyribose sugar, the nucleotides having deoxyribose sugar, they combine with one another, and then two such strands come anti-parallel to one another, and hydrogen bonds are formed between the nucleotides or the nitrogenous bases, then a DNA is formed. Okay, we did the salient features of the genetic material, and then we had started, we have wanted to study how this DNA is formed. And for the formation of DNA, we were studying about the replication of DNA. How does the DNA replicate? If the cell is dividing, we have studied that in synthesis phase, the DNA duplicates itself. So how does this duplication takes place? What are the steps in the duplication of DNA? That we are going to study. And I told you, in order to remember what are the steps, keep two things in mind. First thing is that the DNA replication is semi-conservative. And what do you mean by semi-conservative nature? The semi-conservative nature means that if suppose these are two DNA strands, two strands of DNA which are anti-parallel to one another, whenever the new strand synthesis takes place, it takes place from the center. The DNA opens up, the new strand synthesis takes place from the center, and then eventually these two strands, suppose my fingers are the newly synthesized strands. So when two daughter cells are formed, the daughter cells have got one strand from the parental DNA and one newly synthesized strand. Similarly, the other daughter cells will have one parental strand and one newly synthesized strand. Okay, so this is called a semi-conservative nature of DNA. Semi-conservative means one parental strand comes for DNA for new DNA formation, and one the newly synthesized strand. Shikha, please mute yourself, Peter. Okay, so let's proceed with how was this DNA, the semi-conservative nature of DNA found out. We studied that it was done by Michelson and Stahl experiment, and then Michelson and Stahl experiment. I'll just proceed with Michelson and Stahl experiment. I'll just show you Michelson and Stahl experiment. Just give me a minute. Mom, I've sent you. Okay, so this was Michelson and Stahl experiment. In Michelson and Stahl experiment, what was done, that E. coli was taken, Escherichia coli. See, Escherichia coli is of immense importance. Escherichia coli, because it is easy to grow, and we have the specific doubling time for it, that is, it doubles itself in 20 minutes, and then it is kind of a non-pathogenic bacteria, and it can be used for variety of, it is being used for variety of experiments. We have the complete genetic makeup of Escherichia coli. So Escherichia coli is of immense importance in biotechnological experiments. So even Michelson and Stahl, he used Escherichia coli, and then he grew it in a
heavy isotope of nitrogen containing medium. Okay, so heavy isotope of nitrogen containing nitrogen ammonium chloride medium. So what happens? All the two strands of DNA became heavy isotopes. Okay, heavy matlab when we centrifuge them, they will form a strand. They will separate out at the lower part of the centrifuge tube. So as I told you, if this is a centrifuge tube, they because they are heavy, वो नीचे strand form करेंगे. Suppose this is the place where nitrogen 15 वाले are forming their strand, and this is the place where it was found कि जब दोनों strands nitrogen 14 वाले हैं, they are forming their strand here. Okay, so nitrogen 14 वाले अपना strand यहाँ पे बनाते हैं. When they are centrifuge, nitrogen 15 वाले यहाँ पे बनाते हैं. Okay, so now what they did, Michelson and Stahl just grew this bacteria in light isotope of nitrogen 14 for one generation. एक generation तक जब grow करा उन्होंने, so what did he find? He found that the bacterial cell that he extracted after 20 minutes formed a strand somewhere between these two strands. ना तो वो DNA nitrogen 15 जैसा heavy था, ना पूरा nitrogen 14 जैसा light था. The strand was formed somewhere in between the place of nitrogen 14 and nitrogen 15. So ऐसा क्यों था? Why was it so? Because one of the strand that was coming from the parent, the parent जिस समय divide हुआ होगा, then how the division must have taken place? The division must have taken place in this way कि यहाँ दोनों strands आपस में divide हुए, बीच में से नया strand बनना शुरू हुआ. Whosoever has been muted, unmuted, please mute yourself. Okay. The division of strand took place, and the newly synthesized strand had one parental strand, dark blue one, and the newly synthesized strand. Similarly, the other strand also had the parental strand and the newly synthesized strand. Okay, so this led to the semi-conservative nature of DNA. Okay, that is why the two strands were together, in between. Okay, just give me a minute. I think I told you that using the board, I'll explain this to you. So how is DNA replication occurring? So that means if this is one strand, this is the DNA, and this is the DNA which has to replicate itself. Okay, I'll make it a bit lower so that you all can see. I hope yahan se dikh raha hai. Okay, so this is the DNA which has to replicate. When the replication of DNA takes place, then what happens? The strand, they open up like this. The strand, it opens up like this, and the new strand synthesis starts from the center. Each में से strand synthesis start हो जाती है. And after replication, what happens? Two daughter cells are formed, or the two DNA which are formed. उनमें एक strand तो parental strand होता है, और दूसरा strand कैसा होता है? It is the newly synthesized strand. Okay, तो अब ये Michelson and Stahl के experiment में ये जो दोनों strand थे, they were nitrogen 15 strand heavy isotope. एक generation के लिए बैक्टीरिया को grow किया गया light isotope of nitrogen में. तो जैसा raw material, वैसा ही type of the strand will be formed. So the strand formed was the light form of nitrogen, had light nitrogen 14, so lighter strand था. And when one heavy strand and one light strand will combine with one another, तो क्या होगा? Again, कहाँ पे centrifugation होगा? कहाँ पर वो combine? It will be found in the centrifuge tube between the DNA which has both strands which are heavy type and the DNA which has both strand light type. Somewhere in between, it was forming it was getting separated. Okay, so this was the first experiment of Michelson and Stahl. और उसके बाद उन्होंने second experiment क्या किया? अब इसी चीज को एक और जनरेशन तक प्रोसीड किया. तो उसके लिए अगेन एक छोटा हम लेआउट बना लेते हैं. ओके, सो वन डीएनए, एक डीएनए स्ट्रैंड जो कि नाइट्रोजन 15 में ग्रो किया गया, जिसके दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 टाइप थे. ओके, इट वाज ग्रोन इन अ नाइट्रोजन 14 मीडियम. नाइट्रोजन 14 मीडियम में ग्रो करा, तो उससे दो डॉटर सेल्स बने, डॉटर स्ट्रैंड्स बने, जिसमें कि एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 वाला और एक स्ट्रैंड कैसा आएगा? नाइट्रोजन 14 वाला. बिकॉज नाउ
they are growing in the raw materials available for making of strand is nitrogen 14 type. So ये हो गया पहला experiment. Now when second time this generation was made to replicate for 20 more minutes, तो अब ये replicate करेंगे. अगर ये replicate करेंगे तो how will the division take place? One strand that will be formed will be this type. ये parental strand जहाँ पे जाएगा, newly synthesized strand N14 type, पुराना strand N15 type. Okay. Now the other strand will be both N14 and N14. Okay. Here also one strand will be N15 and N14, and the other strand will be N14 and N14. अब देखते हैं centrifuge tube पर कितने तरीके के places उनको मिले. Okay. So let us see कितने तरीके के उनको labels मिले. This will nitrogen 15 and nitrogen 14 जहाँ पे आ रहा है, ये क्या करेंगे, एक हम reference line बना देते हैं. This was the reference line for nitrogen 15, nitrogen 15. This was the reference line for nitrogen 14, nitrogen 14. उनको एक strand मिला between nitrogen 15 and nitrogen 14. Ma'am, reflection is और visible. दूसरा strand. Okay. Now glass is visible No, ma'am, I'm seeing a board. on board. Okay. Just give me a minute. Is it better now? Aditya, is it better now? Yes? Okay, fine. So that means, as I was telling you, कि एक strand, this was the first strand they got, in which the strand was between nitrogen 15, nitrogen 14. तो एक strand इसको ऐसा मिला, और एक strand कहाँ पे मिला? The second strand he found here, जहाँ पे दोनों strand half were both nitrogen 14 types. Okay. So these two types of strands were possible. The occurrence of these two types of strands showed that the DNA replication is semi-conservative. क्योंकि अगर पुराना strand नए generation में नहीं जा रहा होता, तो ये वाले नए generation में इस तरीके के DNA का होना impossible था. Okay, so this showed the semi-conservative nature of DNA replication. Okay, so let's proceed with DNA replication. Let's see the second part of the DNA replication. And the second part of the DNA replication is that the DNA replication is semi-discontinuous. So how do you find out the semi-discontinuous nature of DNA replication? Let us see the semi-discontinuous nature of DNA replication. See, this was what was shown by Okazaki. Okay, Okazaki, he gave this belief that एक strand में replication takes place continuously. Can you see this strand? Now, this is a DNA strand, जो dark blue strand है, that is a DNA strand. ये धीरे-धीरे बीच में से खुलता है. We call this as the replication fork, and this replication fork से दोनों साइड में डॉटर स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है, and then they separate out, and the semi-conservative division occurs. Now, Okazaki said कि एक स्ट्रैंड में तो कंटिन्यूअस न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस टेक्स प्लेस. ठीक है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, कोई बीच में ब्रेक्स नहीं है. सी द लाइट ब्लू स्ट्रैंड, दैट इज द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड. जबकि दूसरे वाले स्ट्रैंड के अगेंस्ट जो स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, दे आर अकरिंग एज स्मॉल फ्रैगमेंट्स. कंटिन्यूअस सिंथेसिस नहीं है. इट इज the synthesis is taking place discontinuously. Okay, and these discontinuous strands that are being secreted are known as the Okazaki fragments, because Okazaki ने इसको discover किया था, तो उसने इसका नाम दिया Okazaki fragments. Okay, so this shows that DNA replication is semi-discontinuous, continuous in one strand and discontinuous in the other strand. A question arises कि ऐसा क्यों होता है? Why the DNA replication is continuous in one strand and discontinuous in the other strand? Let us see. Let us try to understand. इस चीज को समझने के लिए we need to understand the process of replication of DNA. Okay, the process of replication of DNA involves many enzymes and involves many substrates. जैसे raw materials चाहिए होते हैं ना, photosynthesis के लिए भी raw materials चाहिए, वो combine हो करके carbohydrates बनाएंगे. Similarly, here also some raw materials are required. Many enzymes, biological catalysts are required for the replication to take place. So when we talk about DNA replication, this is how the replication takes place. The replication takes place in various steps.
And what are those steps? The first step of DNA replication is the starting of the DNA replication, that is first the origin of replication. Origin of replication, ORI, is very, very important, and this will become all the more important when we study about plasmids, when we study about biotechnology, where their plasmids need to have an origin of replication. So all DNA have an origin of replication, और ये वो साइट होती है जहाँ पे polymerase enzyme, we know कि कोई भी नई synthesis, किसी भी चीज का नया when small units combine to form a larger unit, we call it as polymerization. And this, and actually in the synthesis of DNA, what is happening? Small nucleotides are combining together to form a large DNA. So this is also a polymerization. So DNA polymerase is the enzyme which carries about this DNA polymerization. Okay? DNA polymerization के लिए, first of all, we should have a DNA strand. वो DNA strand should separate from one another, and then the DNA replication will start. Okay, so origin of replication, where DNA polymerase can bind and start the replication, is very, very important. The first thing which is required for replication of DNA. Okay, अब इसके बाद what is DNA polymerase going to act on? क्या करेगा DNA polymerase? It will just join, cause the एक enzyme है ना, वो अपने आप तो DNA नहीं बना देगा. It will simply cause, enzymes are biological catalyst, वो किसी reaction को catalyze करेंगे. So which reaction are they catalyzing? They are simply causing the joining together of nucleotides. ये जो आपको इस पे sticks दिख रही हैं, green and yellow sticks, तो ये parental DNA के nucleotides हैं, and these green ones are the nucleotides of the newly synthesized strand. और DNA polymerase क्या कर रहा है? इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में पॉलीमराइजेशन यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, so that a newly synthesized strand is being formed. तो अगर हमें न्यूक्लियोटाइड्स को साथ में ऐड करना है, तो सेकंड स्टेप विल बी, पहले तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे पॉलीमरेज को जाना चाहिए, एंड देन सेकंड स्टेप विल बी द एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स नहीं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, DNTPs should be activated. और ये activation कैसे होता है? They have to be changed into their active group, that is they need to have 3 phosphate group instead of 1. Okay, so अब ये कैसे होता है? Large amount of energy is spent for this activation, and an enzyme is required for activation of the nucleotides, and this enzyme is known as enzyme phosphorylase. Okay, so phosphorylase enzyme क्या करती है? DNTPs को activate करती है by the expenditure of energy, so that जो NMPs हैं, that is DAMP, DCMP, DTMP, DGMP, okay, guanine monophosphate, adenine monophosphate, वो अपने monophosphate form से ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आ जाएंगे, तभी वो DNA replication में help कर पाएंगे. okay, और उनको AMP से ATP फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? Phosphorylases enzyme करेगी, along with the expenditure of large amount of energy and in the presence of H3PO4. Okay, so H3PO4 के presence के the AMP is combined with H3PO4 in the presence of phosphorylase enzyme and large amount of energy, and they are activated to their triphosphate form. Okay, अब इसके बाद आया थर्ड स्टेप. फर्स्ट स्टेप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेकंड इज सारी की सारी जो रॉ मटेरियल्स उनको तैयार करके रखा, चार्ज करके रखा कि अब तुम तैयार हो और हम तुम्हें सब ज्वाइन करते जाएंगे. ओके, सो द थर्ड स्टेप इज द एक्सपोजर ऑफ, अब ये पेरेंटल स्ट्रैंड जो है हमारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी तैयार है. अब जब तक पेरेंटल स्ट्रैंड जो कि बहुत ज्यादा कोइल्ड फॉर्म में है, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से दे आर टाइटली बाउंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जब तक ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगे, डीएनए का जो हेलिक्स है वो खुलेगा नहीं, दोनों स्ट्रैंड्स का सेपरेशन नहीं होगा. क्या इसके बीच में नया स्ट्रैंड सिंथेसिस इज पॉसिबल? No, it is not possible. So then this strand separation has to take place, and this is done by the opening of DNA helix has to take place, which is done by the enzyme helicases. Okay,
तो अभी तक हमने कौन कौन सी एंजाइम्स पढ़ ली? हमने पढ़ी डीएनए पॉलीमरेजेस, हमने पढ़ी द एंजाइम फॉस्फोराइलेजेस एंड द थर्ड एंजाइम हेलिकेजेस। एंजाइम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन को समझने के लिए। सो डीएनए हेलिकेजेस अनवाइंड्स द हेलिक्स, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको अनवाइंड करता है, जिससे कि स्ट्रैंड सेपरेशन बिकम्स ऑल द मोर इजी। ठीक है, अब आपने कभी कोशिश करी है, यू मस्ट बी हैविंग दैट कॉर्ड, वो रस्सियां जो होती है ना, जूट वाली रस्सी और वो जूट वाली रस्सी, दोनों दो रस्सियां एक के ऊपर एक बहुत अच्छे से कॉइल्ड होती हैं। ठीक है, कभी उसकी दोनों रस्सियों को सेपरेट करने की कोशिश करी है? सभी करते हैं, कभी कभी कोई पीस मिला, चलो इसको खोल करके अलग करने की कोशिश करते हैं, चाहे डांट भी पड़ जाए मम्मा से। ओके, सो व्हेन वी ट्राई टू ओपन दैट हेलिक्स, तो क्या होता है, जैसे हमने खोलने के बाद उसको छोड़ते हैं, द मोमेंट वी लीव इट, व्हाट हैपेंस, रिकॉइलिंग टेक्स प्लेस। छोड़ने के साथ ही वो वापस एक दूसरे के ऊपर कॉइल हो जाती है। ठीक है, हो सकता है बहुत परफेक्टली कॉइल ना हो, बट हम यहाँ पर बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। तो डीएनए को अगर हेलिकेज ने खोल दिया और खोलने के बाद छोड़ दिया, तो क्या होगा, डीएनए वापस कॉइल हो जाएगा, और अगर डीएनए वापस कॉइल हो गया, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस। ओके, तो व्हाट हैज टू बी डन, ये जो अनकॉइल्ड डीएनए है, ये जो अनकॉइल्ड डीएनए है, जो एक दूसरे से, यहाँ पर ये डीएनए एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, ये जो कॉइलिंग खुली है, स्ट्रैंड सेपरेशन हुआ है, उसको हमें स्टेबलाइज रखना है कि इतना टाइम तो मिले पॉलीमरेज को नए डीएनटीपीज को ऐड करने का। कहीं डीएनटीपीज को ऐड करने से पहले रिकॉइलिंग हो गई तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो हेलिकेज ने खोला, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से खुलना शुरू करा डीएनए को, एंड फिर उसके बाद स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एंजाइम्स नहीं है ये प्रोटीन्स हैं। These proteins, they bind to this single strand of DNA so that they do not recoil. ठीक है, खोला और खोल के उसको खुला रखा कुछ टाइम तक, जबकि नया स्ट्रैंड सिंथेसिस हो नहीं जाता। ओके, सो opening work is of helicase, and stabilizing that opened DNA, making it remain in that open form, is the work of सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ओके, अब इसके बाद एक और चीज हो जाती है कि कितनी देर तक सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है उसको कॉइल्ड अनकॉइल्ड रखेंगे। तो कई बार इन ऑर्डर टू कीप द डीएनए ओपन, जब आपने देखा होगा, अगर सपोज द रोप इज नॉट कट, आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल अगेन, कि आपने एक जूट की रस्सी ली और उसको सेपरेट बीच में से, साइड से काटा नहीं, बीच में से सेपरेट करना शुरू करा, तो मोमेंट यू लीव वो अगेन रिकॉइल कर जाती है। या तो आप पकड़े रहो, आपने पकड़े रखा तो वो खुली रहेगी, और ये पकड़ के रखने का काम कौन करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, बट बहुत सारा बाकी जो रोप होती है उसमें बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइलिंग क्रिएट हो जाती है, और बहुत प्रेशर लगता है आपको खुले रखने में उसको। ओके, यही चीज डीएनए में होती है। डीएनए इज आल्सो कॉइल्ड, हम उसको जब पुल करके ओपन कर रहे हैं तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, एंड a large amount of tension will be created in the remaining DNA. इस टेंशन को रिलीव करने का काम करता है टोपोआइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, डीएनए में एक कट क्रिएट करेगा, अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए एंड देन रीजॉइनिंग। अगर आपने रस्सी को बीच में से काटा, उसको थोड़ा सा लूज किया और फिर रीजॉइन करा, तो उस रस्सी में टेंशन कम हो जाती है। ओके, तो खोलना, खुले रखना, और जो टेंशन हुई है उसको रिलीव करना, दिस इज कैरिड आउट बाय थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ biomolecules, rather 2 enzymes and 1 proteins, although we know all enzymes are proteins, but ये SSBs enzymes नहीं है, they are simple proteins। खोलने का काम हेलिकेज का, खुले रखने का काम SSBs का, और खुले रखने पे जो टेंशन क्रिएट हुई है उस टेंशन को रिलीव करने का काम टोपोआइसोमरेज का। गॉट इट? अब हमने डीएनए को भी खोल दिया, टेंशन भी रिलीव कर दी, डीएनटीपीज हमारे पास चार्ज रखे हुए हैं, पॉलीमरेज तैयार है। अब हम सिंपली डीएनए को रीड करेंगे और डीएनटीपीज को ऐड करते चले जाएंगे। ओके, सो देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। नाउ स्टार्टिंग ऑफ द सिंथेसिस इतना आसान नहीं है, मॉलिक्यूलर बेसिस इज नॉट सो इजी, और डीएनए इज नॉट सो इजी कि ठीक है पॉलीमरेज तैयार था, पॉलीमरेज ऐड करना स्टार्ट कर देगा। When we talk about polymerases भी दो तरीके के होते हैं। Polymerases can be DNA polymerase, जो DNA के नए synthesis को cause करें। They can be RNA polymerase। Yes, आदित्य? तो मैम हिस्टोन तो जॉइन रखने का काम करेगा।
और ये जो है ये मतलब हेलिकेज वगैरह इनको अलग करेंगे। हेलिकेज दो स्ट्रैंड्स को, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को आपस एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, हेलिक्स को खोलेंगे, वो हिस्टोन प्रोटीन से सेपरेट नहीं करेंगे। हिस्टोन प्रोटीन तो एक तरीके से वो रील होती है ना, जिसके ऊपर एक छोटी सा पीछे गत्ते का कॉइल होता है जिसके ऊपर रील को लपेटा जाता है। तो दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग दैट सपोर्ट ऑन विच डीएनए कैन coil itself for super coiling to take place। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो कॉइल डीएनए है वो धीरे धीरे उसका हेलिक्स खुलता जा रहा है और उसके बीच में से नया स्ट्रैंड सिंथेसिस होता जा रहा है। ओके, तो हेलिकेज का काम अलग है। यस बेटा। मैम अगर 40 मिनट्स के बजाय 30 मिनट्स के लिए रखा होता तो फिर सेंट्रीफ्यूगेटर में कितनी लाइंस दिखती? सिर्फ 40 मिनट्स चाहिए दो जनरेशन होने के लिए। 30-35 मिनट्स अगर इतना भी रखा तो भी हमें एक ही जनरेशन मिलेगी। प्रॉपर डिवीजन ऑफ ऑल बैक्टीरिया विल नॉट टेक प्लेस। तो इसलिए मिसेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट में मोस्ट प्रोबेबली हमें सेकंड लेवल सेकंड स्ट्रैंड नहीं देखा जाएगा, सिर्फ एक ही बीच वाला N14 N15 वाला स्ट्रैंड दिखेगा। N14 N14 वाला स्ट्रैंड चांसेस आर नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके। सो एज आई वाज टेलिंग यू, प्रॉब्लम क्या है डीएनए पॉलीमरेज के साथ? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है और एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है डीएनए पॉलीमरेज के साथ। एंड व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? एक नहीं, ज्यादा दो प्रॉब्लम्स हैं डीएनए पॉलीमरेज के साथ। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद डीएनए पॉलीमरेज? सबसे पहली प्रॉब्लम, वो कभी भी कोई काम खुद शुरू नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं ना, करके दे दो थोड़ा सा तो हम आगे कर लेंगे, लेकिन अपना नया काम हम खुद शुरू नहीं करेंगे। ये वही लेथार्जिक पर्सन है। DNA polymerase can never initiate the synthesis of DNA। कोई शुरू करके दे दे तो उसके आगे हम स्ट्रैंड का सिंथेसिस तो कर देंगे, बट इनिशिएट कभी नहीं कर सकते। ये एबिलिटी RNA polymerase में है। It can start any synthesis of a new strand, but DNA polymerases cannot initiate the synthesis of a new strand। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए? इसको एक हेल्पर चाहिए कि पहले मेरे को इनिशिएट करके दो, उसके आगे स्ट्रैंड का सिंथेसिस आई विल ऐड। तो इसीलिए आपने देखा इस डायग्राम में रेड कलर से एक पार्ट बना हुआ है, दैट इज प्राइमर। ओके, जो which is synthesized by an enzyme which is known as primase। और ये प्राइमेज एंजाइम क्या है? इट इज अ RNA polymerase enzyme। तो ये ऑब्वियसली RNA polymerase enzyme है, तो ये RNA के न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर ऐड करेगी। ठीक है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं करेगी, बट यस एक बार उसने न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर ऐड करा एक सीक्वेंस में, थोड़ी दूर तक उसने स्ट्रैंड सिंथेसिस शुरू करके दे दी ओराई से, तो कुछ स्ट्रैंड सिंथेसिस के बाद 4 से लेकर 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स तक प्राइमेज सिंथेसाइज करता है, और उसके आगे डीएनए पॉलीमरेज ओके फाइन नाउ आई विल डू, नाउ चलो अब हो गया तुम्हारा काम, नाउ आई विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग द फॉलोइंग स्ट्रैंड। अब एक क्वेश्चन दिमाग में यहाँ पर आना चाहिए आप सबके कि मैम डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स में तो बहुत बड़ा फर्क है। सबसे पहला फर्क तो हो गया शुगर का, फर्स्ट डिफरेंस इज ऑफ द टाइप ऑफ शुगर, एंड सेकंड डिफरेंस इज ऑन द टाइप ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस। एक तरफ तो ATGC होते हैं और एक तरफ होते हैं AUGC। अगर यहाँ कोई यूरोसिल आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और आरएनए पॉलीमरेज है तो यूरोसिल ऐड भी कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली कमी डीएनए पॉलीमरेज की आपको पता चल गई, इट कैन नॉट स्टार्ट अ स्ट्रैंड सिंथेसिस। पहले हम उसकी कमियों की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे उसकी गुड फीचर की। सेकेंड शॉर्टेस्ट problem of DNA polymerase is it can always synthesize a new strand in 5' to 3' direction only। वो हमेशा नया स्ट्रैंड 5' to 3' डायरेक्शन में ही सिंथेसाइज कर सकता है, 3' to 5' में नहीं कर सकता। देखें यहाँ पे कहाँ से हमें पता चल रहा है, see here the parental strand is 3' to 5'। ठीक है, जब वो 3' to 5' है, यानी कि जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 5' to 3'। तो पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज कर रहा है? 5' to 3' डायरेक्शन में। ठीक है, यही कमी है। सिंथेसिस तो यहाँ भी हो रहा है, कैसे हो रहा है अभी आएंगे। ठीक है, नॉट गेट कंफ्यूज, बट यस just remember DNA polymerase cannot initiate strand synthesis, it needs the help of RNA polymerase, that is known as primase here। Okay, then second thing is it can synthesize a strand continuously only in 5' to 3' direction, in 3' to 5' direction it cannot synthesize a new strand। ठीक है, ये तो दो हो गई कमियां डीएनए शॉर्ट कमिंग
polymerase. Now comes the benefit. कुछ अच्छाई भी तो होगी इसमें, DNA को बना रहा है तो कुछ तो इसमें अच्छा होगा. So it has got a very unique property of proofreading. ये इस डायरेक्शन में जाता है, नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है और फिर वापस इस डायरेक्शन में आता है और प्रूफ रीड करता है डीएनए को. प्रूफ रीडिंग बहुत जरूरी है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल सिस्टम्स. आदित्य जस्ट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट द स्टेटमेंट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल सिस्टम्स जहां पे अगर एक भी गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो सिकल सेल एनीमिया देखा था, सिर्फ एक गलत न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने से जेनेटिक डिजीजेस कॉज हो सकती हैं. सो व्हाइल द न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड, अगर कोई गलती हो गई है तो इन 3' इट सिंथेसाइजेस द स्ट्रैंड इन 5' to 3' डायरेक्शन और 3' to 5' डायरेक्शन में वापस जाके क्या करता है, प्रूफ रीडिंग करता है. और अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो उसको रिमूव करता है और सही न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है. नाउ आई टोल्ड यू कि प्राइमेज एंजाइम ने प्राइमर सिंथेसाइज किया, उसमें तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसमें, साथ ही साथ उसमें यूरासिल भी हो सकता है. ओके, तो जिस समय डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीड करेगा, ड्यूरिंग प्रूफ रीडिंग इट विल रिमूव दीज न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए एंड ऐड इट्स ओन न्यूक्लियोटाइड्स देयर. ठीक है, क्योंकि अब तो उसको ऑलरेडी यहाँ तक जो स्ट्रैंड बना हुआ है इसके आगे ही ऐड करना है, इनिशिएट नहीं करना है. तो ड्यूरिंग प्रूफ रीडिंग इट रिमूव्स द ओल्ड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए by primase and adds the appropriate nucleotides. ठीक है आदित्य, your doubt? Yes आदित्य. मैम 2 क्वेश्चन है. Yes. मैम सबसे पहली बात तो मैम जो आपने मतलब क्या कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज का बताया कि दे कैन नॉट इनिशिएट देयर प्रोसेस. तो मैम ये बेनिफिट ही हुआ ना इसका, क्योंकि अगर ये बार बार इनिशिएट करता रहेगा तो मतलब हर बार डीएनए करता रहेगा अपना डिवीजन. तो ये लिमिटेशन है इसकी. डेफिनेटली ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का कि अननेसेसरी व्हेनेवर नॉट रिक्वायर्ड डीएनए रेप्लिकेशन अपने आप ना हो जाए, वरना पॉइडी भी चेंज हो सकती है ऑर्गेनिजम्स की. तो उसके लिए भी ये चीज बेनिफिशियल है, नो डाउट. वेरी गुड आदित्य, बिल्कुल ये सही बात है. ठीक है, लेकिन हाँ जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो एक शॉर्टकमिंग बन जाती है बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमेज एंजाइम कि वो शुरू करेगा ओराई पर, तभी वो जाकर के आगे सिंथेसाइज कर सकता है. ओके आदित्य, और कोई फीचर? यस 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 मैम अगर यूरिसिन वहीं पे लगा रहा, मतलब सिर्फ एक ही ऐसा हुआ कि लगा रह गया और बाकी सारे चेंज हो गए, तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? See, अगर यूरासिल ऐड हो गया तो कोई वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूरासिल जो है वो एडेनिन के साथ आइडियली बाइंड करना चाहिए. लेकिन यूरासिल एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है बेटा जो कि बहुत इजीली डिग्रेड, अगर आप यूरासिल और साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखो ना तो बहुत हद तक सिमिलर है, सिर्फ कुछ फंक्शनल ग्रुप्स का फर्क है दोनों के स्ट्रक्चर में. एंड यूरासिल कैन बी इजीली डिग्रेडेड. आई टोल्ड यू यूरासिल की कमी यही है, वो काफी जल्दी डिग्रेड होकर इट कैन स्टार्ट बिहेविंग लाइक साइटोसिन. और अगर उसने साइटोसिन के साथ बिहेव करना शुरू कर दिया तो वो ऑपोजिट स्ट्रैंड में ग्वानिन के साथ बाइंड करेगा, जबकि यूरासिल अगर होता या थाइमीन होता तो उसको एडेनिन के साथ बाइंड करना चाहिए था. तो ये यूरासिल वाला डीएनए जब भी रेप्लिकेट करेगा और अगर उसमें जरा भी म्यूटेशन हो गया तो वो नए स्ट्रैंड में उस जगह ग्वानिन ऐड कर देगा एडेनिन की जगह. ओके, अगेन व्हिच कैन लीड टू अ जेनेटिक डिजीज. ठीक है आदित्य, गॉट इट? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? यस 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 आदित्य. मैम आपने कहा कि 5' से 3' तक तो बनेगी चेन, फिर 3' से सिंथेसाइज करेगा, 3' से 5' वापस आएगा प्रूफ रीडिंग करने के लिए. प्रूफ रीडिंग के लिए. प्रूफ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, प्रूफ रीडिंग. मैम तो इस टाइम पे क्या हुआ, मतलब वापस से नए वो लग रहे हैं, यूरिसिल हट के नए वो लग रहे हैं, मतलब वो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देगा, कट करके रिमूव कर देगा और एक नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा. सारे न्यूक्लियोटाइड यही सॉल्यूशन में तो पड़े हुए हैं. तो मैम तब भी जीटीपी वगैरह अपना काम करते रहेंगे. क्या काम करेंगे बेटा? अभी तो डीएनए रेप्लिकेशन ही हो रहा है, सिंथेसिस फेज है अभी डिवीजन और बाकी काम तो नहीं कर रहा है ना. सेल की ग्रोथ पूरी हो चुकी है, ये वाली स्टेज आएगी सिंथेसिस फेज में. सिंथेसिस स्टेज में डीएनए जब रेप्लिकेट कर रहा है तो वो ये सारे प्रोसेसेस कर रहा है, तो और कोई फंक्शन कभी करना नहीं है. डीएनए जब रेप्लिकेट हो जाएगा, सेल डिवीजन हो जाएगा, उसके बाद सेल्स अपना काम करेंगी. दैट इज व्हाई द सिंथेसिस फेज कम्स जब पूरा ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाता है सेल का, देन इट एंटर्स इनटू द एस फेज. ठीक है, ओके. एनी डाउट्स?
ओके, सो लेट्स प्रोसीड। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप हो गया ओराई का बनना, ओराई पर एक वहां से जाकर के डिवीजन का बनना। अब ये क्या हो सकता है इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओराई से एक चीज और ध्यान रखो, ओराई इज द प्लेस, ओराई मींस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से डीएनए सेपरेट होकर के और वहां से सिंथेसिस होगा ना। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी मिलती है। कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें कि एक नहीं कई सारे ओराई प्रेजेंट होते हैं एक ही डीएनए में। तो डीएनए जगह जगह से खुलता है जिससे ज्यादा तेजी के साथ डीएनए का रेप्लिकेशन हो सके। अगर डीएनए एक ही जगह से खुल रहा है और वहीं से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और वहीं से उसका डिवीजन हो रहा है, तो सच अ स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज अ सिंगल रेप्लिकॉन। और अगर कई सारे रेप्लिकॉन्स प्रेजेंट है, कई सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है और कई सारी जगहों से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो सच अ प्रोसेस, सच अ टाइप ऑफ डीएनए विल बी कॉल्ड एज अ मल्टी रेप्लिकॉन डीएनए। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर स्टार्टिंग हुई डीएनए सिंथेसिस की, पॉलीमरेज वगैरह सब कुछ रेडी हो गए, हमने डीएनटीपीज को एक्टिवेट कर दिया, एएमपीज से उनको एटीपीज बना दिया, ठीक है, एनएमपीज से उनको एनटीपीज, एन फॉर ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स, उनको एनटीपीज बना दिया और एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद तीन चीजों ने काम किया, हेलिकेज ने खोला डीएनए को, एसएसबी ने बाइंड करा डीएनए को और टोपोआइसोमरेज ने हेलिक्स की टेंशन को रिलीव कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, प्राइमेज एंजाइम आया और उसने सबसे पहले 5' to 3' डायरेक्शन में एक छोटा आरएनए प्राइमर ऐड किया और डीएनए प्राइमेज के प्राइमर ऐड करने के बाद उसके आगे सिंपल बेस पेयरिंग होता है। डीएनए पॉलीमरेज स्लाइड करेगा डीएनए के ऊपर, यू कैन सी दिस स्लाइडिंग ओवर द डीएनए, और क्या करेगा, इस डीएनए के स्ट्रैंड को रीड करेगा। अगर यहाँ पर ए है वो यहाँ पे टी ऐड कर देगा, यहाँ पर जी है यहाँ पर सी ऐड कर देगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विल अकर, एक जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसको रीड करता जाता है डीएनए पॉलीमरेज और उससे उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड में ऐड करता चला जाता है। दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ बेस पेयरिंग। ओके, देन इज द अब बेस पेयरिंग होने के लिए अगेन अब हमें क्या चाहिए, एक चीज का आप ध्यान रखो, जब एक्टिवेट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स तो वो एटीपी फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन ऐड करने के लिए अगेन हमें उनको एएमपी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हमने उनको एक्टिवेट किया वो अपने एटीपी फॉर्म में आए, उनको ऐड करने से पहले उनको वापस एएमपी फॉर्म में लाते हैं द एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज। तो एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज अगेन रिमूव्स 2 फॉस्फेट ग्रुप। क्या जरूरत है इतना करने की, पहले भी तो एएमपी फॉर्म में थे, अब उनको वापस एएमपी फॉर्म में क्यों ला रहे हैं? व्हाई डिड वी कन्वर्ट देम इनटू एटीपी फॉर्म? बिकॉज जिस समय वो अपने एएमपी फॉर्म में आएंगे, रिमेंबर क्लास 10, द फॉस्फेट ग्रुप्स आर द एनर्जी कंटेनिंग ग्रुप्स। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप टूटेगा क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज्यादा रिएक्शन, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी की वजह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आराम से बन जाए। ओके, तो हमें एनर्जी चाहिए, उस समय हम एनर्जी कहाँ से लाएंगे, हमने एटीपीज को उस जगह पे लाए, एटीपीज के 2 फॉस्फेट ग्रुप को निकाला, जैसे ही निकाला बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई और उतनी सारी एनर्जी की हेल्प से क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, साथ ही साथ दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। गॉट इट? एनी डाउट्स इन दिस? एनी डाउट्स? After the newly synthesized strand is formed, the DNA polymerase slides over this newly synthesized strand and proofreads the DNA, removes the primer, adds the DNA strands, the new strand there, and after this, जब DNA का synthesis complete हो जाता है, the 2 strands separate from one another and DNA replication is complete. Quickly, वैसे तो time up हो गया, मेरी next class है, I'll quickly revise the points. सबसे पहले हमने क्या किया, we were talking about first DNA replication. DNA replication बहुत ज्यादा, so I'm paying so much stress to it. DNA replication में सबसे पहले क्या होता है, ओराई होना चाहिए जहां से DNA सेपरेट करेगा। It can be single और it can be many. अगर many ओराई है तो मल्टी रेप्लिकॉन बन जाएगा। Second thing is the activation of nucleotides. उनको सिंगल फॉस्फेट ग्रुप से उनको 3 फॉस्फेट ग्रुप की स्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद डीएनए पे वर्क करना शुरू करते हैं। डीएनए को खोला हेलिकेज ने, स्टेबलाइज किया एसएसबीज ने, एंड देन उसका टेंशन को रिलीव किया टोपोआइसोमरेज ने।
अब डीएनए सेपरेट हो गया, प्राइमेज ने जाके वहां पर एक प्राइमर ऐड कर दिया, प्राइमेज के ऐड करने के बाद प्राइमर उस पर डीएनए पॉलीमरेज ने स्लाइड करना शुरू करा, वहां पर एनटीपीज आए, उनके 2 फॉस्फेट ग्रुप को निकालते गए, उससे बनने वाली एनर्जी से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए दोनों स्ट्रैंड के बीच में, और स्ट्रैंड सिंथेसिस होता चला गया। जब पूरा डीएनए इस तरह से रेप्लिकेट कर जाएगा, रेप्लिकेशन विल बी कंप्लीट, डीएनए पॉलीमरेज उसके ऊपर स्लाइड बैक करेगा 3' to 5', प्रूफ रीडिंग करेगा, और प्रूफ रीडिंग के बाद व्हाट विल हैपन, जो भी गलत बेसिस होंगे उनको सही कर दिया जाएगा, एंड डीएनए रेप्लिकेशन विल बी कंप्लीटेड। ओके, इफ यू हैव डाउट्स आई एम